अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली में आरटीसी मुलाजमीन इंजमाम बिल मंजूर। 43,000 आरटीसी मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजिम। आरटीसी एम्प्लॉइज के लिए तारीख साज लम्हा, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट का बयान। अगले असम्बली इंतखाबात में भी BRS अक्सरियत हासिल करेगी। हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम हमें मुंतखब करेगी। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में मुबाहिस पर दिया बयान। मुल्क में बिगड़ती हुई फ़िरका परस्ती पर तशवीश का इजहार। पिछले 9 साल में तेलंगाना में कोई फ़िरका वराना फसादात ना होने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश। ऐवान असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना के इनकलाबी शायर और साबिक नक्सलाइट गदर दौरान इलाज चल बसे। अवामी मफादात को नज़्बुल ऐन बनाने वाले कायद को मुख्तलिफ तबक़ात का खिराज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली ने अपने काम के आखिरी दिन आरटीसी मुलाजमीन इंजमाम बिल को मंजूर करते हुए एक नई तारीख रकम की है। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने बिल पर हुकूमत से वजाहतें तलब करते हुए इसे रोक के रखा था। तमाम हुकूमत की वजाहत, आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से किए गए एहतजाज और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मदाखलत के बाद गवर्नर ने इस बिल को हरी झंडी दिखाते हुए दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद इसे असम्बली में मंजूर कर लिया गया। आरटीसी के तकरीबन 43,000 मुलाजमीन को अब सरकारी मुलाजमीन तस्वुर किया जाएगा और उन्हें भी फ़वाइद हासिल होंगे। इस बिल की मंजूरी पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि एक तारीखी लम्हा है। ताम हुकूमत पर इससे सालाना 3,000 करोड़ का बोझ आयद होगा। ఈ బిల్లుని బలపరుస్తూ గౌరవ సభ్యులు మౌజం ఖాన్ గారు, గౌరవ సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ గారు, గౌరవ సభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు. అందులో ప్రత్యేకించి ఈటెల రాజేందర్ గారు కొన్ని ఇష్యూస్ వారికి సంబంధించిన PRC కానీ లేకపోతే CCS బకాయిలకు సంబంధించి కానీ TA బిల్స్కి సంబంధించి తర్వాత రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ వారు ప్రస్తావించారు. అధ్యక్ష, ఒక్కసారి ఈ ఉద్యోగులు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా పరిగణించబడ్డ తర్వాత ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వారికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్నిటి కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అవన్నీ కూడా పరిష్కరించబడతాయి. అధ్యక్ష PRC అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి ఏ రకంగా అయితే వర్తిస్తుందో అదే వీరికి కూడా వర్తిస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. దాంతోపాటుగా CCS బకాయిలు CCS బకాయిల్ని మరి కార్పొరేషన్ లయబిలిటీ ఉంటుంది, కార్పొరేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అధ్యక్ష, అంటే TSRTC కార్పొరేషన్ అనేది యాజ్ సచ్గా కంటిన్యూ అవుతుంది. దాని అసెట్స్ కానీ లయబిలిటీస్ కానీ లేదా కార్పొరేషన్ నుండి ఇప్పుడున్న ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే TSRTC ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారో వారికి రావాల్సిన బకాయిలు అన్నిటినీ కూడా కార్పొరేషనే పే చేస్తుంది. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగులకి జీతభత్యాలు పేమెంట్ చేయడం వరకు ప్రభుత్వం చేస్తుంది. మిగతా వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉంటుందో అది యాజ్ సచ్గా కార్పొరేషన్కే ఉంటుంది. ఆ కార్పొరేషన్ను తన ఆదాయం ఏదైతే ఉందో ఆదాయం నుంచి ఈ ఆబ్లిగేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా పే చేస్తుంది, బకాయిలన్నీ కూడా పే చేస్తుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లనే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ విషయంలో కూడా మరి యాజ్ సూన్ యాజ్ ఈ బిల్ పాస్ అవ్వగానే గైడ్లైన్స్ అన్నీ కూడా రూల్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్ అన్నీ కూడా ఫామ్ చేసుకుంటాం. అందులో మరి ఆ ఉద్యోగస్తులతో చర్చించి వారికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ విషయంలో కూడా ఏ రకంగా వారికి ఇష్టం ఉన్నది అనేది వారితో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అట్లనే డైలీ వేజెస్ తర్వాత అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి కూడా రాజేందర్ గారు ప్రస్తావించారు. అధ్యక్ష, ఇది ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటున్నది ఆర్టీసీలో ఉన్న పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఈ రోజున ఉన్నది 43,055 మంది. ఇవాళ ఉన్నది. సో వాళ్ళకి సంబంధించినంత మట్టికి ఈ అబ్జార్ప్షన్ బిల్ ప్రవేశపెట్టబడింది. వీళ్ళు కాకుండా 240 మంది మా దగ్గర 240 మంది కాంట్రాక్ట్ కానీ లేదా క్యాజువల్ వేజెస్లో ఉన్న వర్కర్స్ ఉన్నారు. అది కాకుండా మరి ఈటెల రాజేందర్ గారు చెప్పబడిన అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ లేదా డైలీ వేజెస్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా TSRTC కార్పొరేషన్ ద్వారా నియమించబడిన అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ ద్వారా
అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ యాజ్ సచ్గా కార్పొరేషన్ ఆ ఏజెన్సీని కొనసాగిస్తుంది, వాళ్ళందరూ కూడా కొనసాగుతారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి నేను సభ్యులు అడిగిన వివరణకి సమాధానం తెలియజేశా. కాబట్టి ఈ బిల్లుని అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించవలసిందిగా మీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में भी BRS पार्टी अक्सरियत हासिल करते हुए इक़्तिदार पर काबिज़ होगी। उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा के मुकाबले इस मरतबा BRS पार्टी को 7 ता 8 नशिस्तें ज़्यादा ही हासिल होंगी। अपनी तकरीर के दौरान KCR ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस हर मुहाज पर नाकाम रही है। वज़ीर आला KCR ने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तमाम इक़दामात का तफसीली तस्करा किया। తెలంగాణ ఏర్పడ్డ రోజు మన స్థానం ఎక్కడో ఉన్నది అధ్యక్ష. ఏర్పడ నుంచి నేటి వరకు మనం పెద్ద రాష్ట్రాలలో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. మన పర్ క్యాపిటా ఈరోజు 3,12,000 రూపాయలుంటే ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే మనం విడిపోయినామో, ఎవరైతే మన ఎకసక్కాలు పలికినరో, మీకు పరిపాలన రాదు, మీకు ఇది చేత కాదు అది చేత కాదు అన్నారో, వాళ్ళ పర్ క్యాపిటా 2,19,000 అధ్యక్ష. మన పర్ క్యాపిటా 3,12,000. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 lakh రూపీస్ డిఫరెన్స్. దాన్ని మించి అధ్యక్ష ఇప్పుడున్న ఏపీ అయినా తెలంగాణ అయినా మన 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన రాష్ట్రం. దాన్ని మించి చాలా స్థిరపడి చాలా బలంగా ఉండి ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా తనతో కలిగినటువంటి మహారాష్ట్ర కావచ్చు, గుజరాత్ మోడల్ అని దేశాన్నంతా గోల్మాల్ చేసి ప్రధానమంత్రి సంపాదించినటువంటి గుజరాత్ రాష్ట్రం కావచ్చు, ఇప్పటి నుంచో స్థిరపడి 70 ఏళ్ళుగా ఉన్నటువంటి తమిళనాడు రాష్ట్రం కావచ్చు, కర్ణాటక రాష్ట్రం కావచ్చు, ఇవన్నీ మనకన్నా సైజులో కూడా చాలా పెద్ద అధ్యక్ష. వాళ్ళ కోస్టల్ సిటీస్ ఉన్నాయి, కోస్టల్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కావచ్చు, లేదా ఢిల్లీ సంఖలో ఉన్నటువంటి హర్యానా రాష్ట్రం కావచ్చు. వీళ్ళందరినీ అధిగమించి వీళ్ళందరినీ తలదన్ని వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో పర్ క్యాపిటా ఉన్నది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రమే అధ్యక్ష. तेलंगाना असम्बली इजलास का तीसरा और आखिरी रोज़ भी अरकान के लिए काफ़ी मसरूफ़ रहा, जबकि कई मसाइल ऐवान में उठाए गए। तीसरे रोज़ ऐवान असम्बली में उठाए गए सवालात और हुकूमत की जानिब से दिए गए जवाबात पर देखेंगे ये तफसीली रिपोर्ट। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली में रियासत की खुशहाली और तरक्की पर जारी मुख्तसर मुबाहिस का आगाज़ करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने और अक़लियतों की तरक्की के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया और इस बात का दावा किया कि चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेते हुए रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करने और मुसलमानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से बग़ैर बैंक लिंक के 1 लाख रुपये की जो इमदाद दी जा रही है, उसमें मज़ीद 120 करोड़ रुपये जारी करते हुए कम से कम 50,000 मुसलमानों को 1 लाख रुपये देने के इक़दामात करने पर जोर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मुल्क भर में अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा बजट हमारी नुमाइंदगी पर तेलंगाना में मख्तस किया गया है। और इस्लामिक सेंटर के क़याम के लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के बजाय हज हाउस के बाजू एक इमारत खड़ी है, जो कांग्रेस के दौर से इमारत खड़ी है, कांग्रेस के दौर से साहब, कांग्रेस आंध्र प्रदेश से खड़ी है, पानी में भीग रही है, डूब रही है, गिरने को आई। मैंने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब हज हाउस का एक ब्लॉक बनाते हैं, हज हाउस फेज 2 23 करोड़ रुपीस का बजट तैयार हुआ है। सीएम साहब ने कहा कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे, वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद महकमे इमारत की जानिब से 40 करोड़ रुपए की मालियत से 4,000 से ज्यादा कीमती 4,000 गज 4,000 square yards of land on MIM's representation and request, Honorable CM Saab has allotted to Anisul Ghurba, sir. 4,000 पहले जमीन दिए,
اس کے بعد اب آج ایک 15-20 کروڑ کی لاگت سے 80% عمارت تکمیل ہو گئی ہے. انیس الغربا یتیم بچوں کے لیے خیام, طعام, کھانا, بیماری, علاج اور ایجوکیشن بھی وہاں پہ دیا جائے گا. یہ کام میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, عالی شان عمارت. اور امید کرتا ہوں کہ میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صاحب کام ہو رہے ہیں, آپ وقت دیجئے. جیسا کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم مکمل ہو گیا, وہ بھی آپ ہی نے بنوایا تھا. انیس الغربا مکمل ہو چکا ہے, آپ اس کے لیے بھی ٹائم دیجئے. جامعہ نظامیہ کے ڈگریز ہیں کہ 10th پاس کو, 12th پاس کو, گریجویشن پاس کو, ایک اس کو 10th سیکنڈری اسکول کا ریکگنیشن نہیں تھا, انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کا ریکگنیشن نہیں تھا, یونیورسٹی کی ریکگنیشن نہیں تھا, اینڈ اٹ واز ناٹ ٹریٹڈ ایز اے ڈگری. تو ہمارے ریپرزنٹیشن پہ جامعہ نظامیہ کی 10th کو, 12th کو, ڈگری کو ریکگنائز کیا KCR صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. مکہ مسجد کتنی کیسی ہو گئی تھی. مکہ مسجد پوری خراب تھی, مکہ مسجد میں پانی ٹپک رہا تھا. ہم نے اسمبلی میں مطالبہ کیا, 8 کروڑ روپئے سے قطب شاہی دور کی بنائی گئی مسجد, جو کسی کانگریس یا TDP کے دور میں کوئی مینٹیننس کا کام نہیں ہوا, TRS حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبے پر منظوری ہوئی اور کام ہو رہا. افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی منظوری ہوئی, باغیام کی مسجد کے لیے بھی منظوری ہوئی, اور پھر حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے لیے ریمپ کا ہم نے کہا تھا, وہ ریمپ 90% کمپلیٹ ہوا. ہمارے شیعہ بھائی مولا علی کو جاتے ہیں, سی ایم صاحب جانتے ہیں مولا علی کو, ہم نے ریمپ کے لیے کہا تھا, سی ایم صاحب نے KTR صاحب سے کرا, GHMC نے وہ ریمپ کو لیا ہے. فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو گیا ہے, سیکنڈ فیز آن گوئنگ ہے, وہ بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. درگاہ بران شاہ اولڈ سٹی میں, میرے ایریا میں, میری کانسٹیٹنسی میں, ہم نے وہاں پہ کہا کہ وہاں پہ وومن امپاورمنٹ سینٹر کے لیے تو 20 کروڑ روپیز کی بلڈنگ کی تعمیر جاری ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ 1 سال 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی. وومن امپاورمنٹ سینٹر ول بی اسٹیبلش ان اولڈ سٹی. سر اس کے بعد میں درگاہ کی عارضی پر ایک جونیئر کالج بھی آ رہا ہے وہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر درگاہ بڑے پہاڑ نظام آباد کا غلے کا ہم نے بتایا تھا کہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے آتے ہیں, اس کو بھی بولا گیا آکشن کے ذریعے, آج وقف بورڈ کو 2.5 کروڑ روپے آ رہے ہیں جناب. اور اس کے بعد میں جناب KT راما راؤ سے ہم نے مطالبہ کیا تھا, یہ ہو گئے سو کام بیان کر رہا ہوں میں, کہ حیدرآباد میں مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفنانے کے لیے قبرستان کی جگہ نہیں ہے, تو فقیر ملا کی 50 ایکڑ کا جیو نکالا کہ وقف بورڈ میں بدعنوانیاں بہت ہیں, بدعنوانیاں بہت ہیں. میں پھر سے کہوں گا اسپیکر صاحب, آپ کے ذریعے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو کہ وقف بورڈ کو بچائیے. سر وقف بورڈ کو بچائیے. اگر وقف بورڈ کی زمینات کو ہم بچا لیں گے تو کوئی مدد کی, کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کی ترقی, خوشحالی, فلاح و بہبود, تعلیم, صحت کے میدان میں وقف بورڈ سے ہی ہم کر سکتے ہیں. صرف ہم کو اس زمین کو بچانا ہے. ہمارے مطالبے پر سی ایم صاحب نے CBCID انکوائری کا آرڈر دیا تھا. میں آپ کے ذریعے سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ پلیز آپ وہ CBCID انکوائری کو سپیڈ اپ کروائیے صاحب. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وقف بورڈ کی زمین کو جو بھی چھینا ہے, جو بھی اس زمین کو لوٹا ہے, اس کو ہتکڑیاں ڈال کے جیل تک پہنچانا چاہیے صاحب ان کو, کیونکہ انہوں نے اللہ کی امانت کو لوٹا ہے. ان سے بڑے لٹیرے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں جو وقف کی اور اللہ کی زمین کو لوٹتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2015 میں ہم مائنورٹی لونز کے لیے 1.5 لاکھ درخواستیں منگائے تھے, کچھ نہیں دیے. اب درخواستیں منگائے ہیں تو 2.5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں. میں سی ایم صاحب سے ایک دردمندانہ اپیل کرتا ہوں صاحب آپ سے کہ 120 کروڑ پرانے تھے اور 120 کروڑ ہریش صاحب نے دیے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اور ایک 120 کروڑ اگر آپ دیں گے تو کم از کم ہم ایک 50,000 مسلمانوں کو لون دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف
आज जो दे रहे हैं एक एक हलके में 100 चिल्लर आ रहे हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कम से कम 50,000 दिए वैसा, क्योंकि वो 2.5 लाख के दरखास्तों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25,000, 40,000 या 50,000 का अप्लाई किया है। तो वीकेंड जो 50,000 का मुतालबा कर रहा है हम 50,000 देंगे, जो 1 लाख दे रहा है वो 1 लाख देंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बीसीस के तरह मुसलमानों को भी 1 लाख लोन देने का हमारे मुतालबे को कबूल किया था, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने केटीआर साहब से टीएस प्राइम के ताल्लुक से कहा था, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ तो भी देकर थोड़ा सा स्टार्ट करें, और मैं आपसे कहूंगा कि एक 20 या 25 करोड़ रुपए अगर देते हैं तो छोटे छोटे जो डब्बे बंडियां वाले हैं उनको 3-3 हजार, 4-4 हजार हम दे दें तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उससे कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हेन आई हैव थैंक्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फॉर इमाम एंड मौजन्स का जो आप पैसे दे रहे हैं 5,000, 10,000 इमाम मौजनों को दे रहे हैं, 7,000 दरखास्तें पेंडिंग है, 6,000 चेंज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं ये इमाम और मौजनों के, अगर उसको भी अगर आप मंजूरी दे देते हैं तो 17,000 इमाम मौजनों को हर माह 5,000 रुपए जाएगा, जिसके जरिए एक मैसेज जाएगा रियासत में और मुल्क में कि इमाम और मौजनों का भी उसी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जिस तरीके से अचलिकास का ख्याल कर रहे हैं। अचलिकास का भी आपने बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अकबर साहब का 2-4 चीज़ें थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर जी, जो आपने कहा, आपने जो मुतालिबा किया मौज़न और इमाम के वास्ते, मौज़न और इमाम को ऑलरेडी 10,000 लोगों को दे रहे हैं। अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी साहब से मालूम किया तो 7,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, कल शाम के अंदर ही उनको ऑर्डर दे रहे, पूरे 7,000 कल शाम के अंदर जीवो निकल जाएगा। वो पूरे 7,000 लोगों को भी जैसा अर्चक समाज के लिए हिंदू देवल में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी सभी लोगों को मिलेगा। और जहाँ तक कब्रस्तान का सवाल है, कुछ मात्रा में आपको म्यूनसिपल मिनिस्टर ने दिलाया है, लेकिन वो बस नहीं हो रहा है। मैंने ऑर्डर दिया है एक 1.25 एकड़ आपको देने के लिए। बिल्कुल मेडचल मलकाजीगिरी ज़िले में कुछ गाँव में, 2-4 गाँव में 125 एकड़ की अराजी मिला और रंगारेड्डी ज़िले में 112 एकड़ का मिला। तो इसमें से एक 125 एकड़ कल शाम तक आपको जीवो मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कल रेवेन्यू सेक्रेटरी नवीन मित्तल साहब से मिलके जो जगह आप पसंद करते हैं चौतरफ ले लीजिए। किसी जगह 10 एकड़ है, किसी जगह 25 एकड़ है, जहाँ जहाँ लेना है कल आप फाइनल कर दिए तो कल शाम के अंदर ज़मीन अलाट करते हुए वो जीवो भी आपके हाथ आ जाएगा। उस तरीके से वो भी काम खत्म हो जाएगा। और दूसरे 2-4 मसाइल आप जो बोले थे वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप से टाइम पे आना चाहिए और कुछ मात्रा में बजट बढ़ाने के भी जिक्र किया आप 2-4 जगह, मैंने नोट कर लिया है। उस पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैं गौर करूँगा, आपको इतला भी दे दूँगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास के चौथे रोज़ हल्के असम्बली गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने वक्फ़े सिफर के दौरान इस बात का इजहार किया कि जारिया मियाद की ये उनकी आखिरी असम्बली है और नई असम्बली में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो ये नहीं जानते, लेकिन वो अपने बारे में इतना ज़रूर कहेंगे कि आने वाली असम्बली में वो नहीं रहेंगे, क्योंकि बाहर वालों के साथ साथ खुद अंदर वाले भी उन्हें नई असम्बली में आने देना नहीं चाहते। राजा सिंह ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो धूलपेट की तरक्की के लिए इक़दामात करें और धूलपेट के लोधी समाज की तरक्की को मुमकिन बनाएं और एक बार धूलपेट का दौरा करें। वाज़ेह है कि राजा सिंह को बीजेपी ने राजा सिंह की जानिब से हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी करने पर हैदराबाद में राजा सिंह के खिलाफ शदीद एहतजाज के बाद बीजेपी आला कमान ने राजा सिंह को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। अध्यक्षा 2014 से लेकर आज तक इस विधानसभा में जब भी आपके आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने मेरी विधानसभा में जिस जाति से मैं हूँ, धुलपेट लोधी समाज से, उस विषय में मैंने कई बार रेस किया है और सरकार से प्रार्थना की है। यही विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं धुलपेट आऊँगा और
जो भी मेरे से बन सकता है मैं धुलपेट के विकास के लिए, जनता के लिए करूँगा। लेकिन आपको पता है अध्यक्षा, मुख्यमंत्री जी के पास शायद समय नहीं है कि यहाँ से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर ही धुलपेट है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं आ सके। लेकिन ये जो विधानसभा है अध्यक्षा, आज आपके आशीर्वाद से जितने लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में यहाँ से आने वाली विधानसभा में कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं अध्यक्षा। मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा, मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि बाहर वाले भी और घर वाले भी सभी लोग चाहते हैं कि मैं विधानसभा में ना रहूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे धुलपेट की जनता के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए अध्यक्षा। क्योंकि आज भी अध्यक्षा मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि उनके हल्के असम्बली कारवान हैदराबाद के 5 इलाक़ों में महकमे दिफा के तहत जो क्वार्टर्स हैं उन्हें मजाज करार देने के सिलसिले में जियो 166 और 244 और फिर 2019 में जियो 118 जारी करते हुए दिफा की अराजियात को क़ानूनी शक्ल देने के लिए अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन आज तक ये मामला ज़ेर इल्तिवा है। इसकी यकसोई करने के लिए इक़दामात पर उन्होंने ज़ोर दिया। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से जो हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर एक 5 मकामात पर जो डिफेंस निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, और इसको साबिक़ा में 2009 के दरमियान में एक जियो आया था जो जियो नंबर 166 और 264 के नाम से, उसकी कई मरतबा मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कई मरतबा नुमाइंदगी करे, और हालिया में 2019 के दरमियान में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करने के बाद एक जियो आया जो 118, और वह हैदराबाद नहीं तेलंगाना के अंदर जहाँ पर भी जो डिफेंस लैंड है वहाँ पर रेगुलराइज करने के लिए जो रिलीज़ हुआ था। मगर आज हैदराबाद के अंदर जो 5 मकामात पर है वह आज भी पेंडिंग है, और ये तमाम तफसीलात मैं साबिक़ा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को और मेरी जमात की जानिब से कलेक्टर हैदराबाद से भी मुलाकात कर बताया था। ये जो जियो है 118 और इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। BRS रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने खैरताबाद में IMAX के करीब मल्टी पर्पज़ कम्युनिटी हॉल क़ायम करने के सिलसिले में जो अराज़ी दी गई थी अभी तक हमडा की जानिब से GHMC को हवाले नहीं की गई। उन्होंने वज़ीर बल्दी नक़्श KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो हमडा को हिदायत दे कि वो अराज़ी हवाले करे। इसके साथ डी नागेंद्र ने इस बात की भी नुमाइंदगी की कि सोमाजीगुड़े में मुस्लिम क़ब्रस्तान के लिए जो जगह दी गई है इसमें जो रुकावटें हैं से दूर करने के भी इक़दाम किए जाएँ। వారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని, దాని పక్కనే బస్తీ దవాఖానకు కూడా మొన్ననే హరీష్ రావు గారు సుమారు 50 లక్షల రూపాయలు మాకు 2 చోట్ల ఇచ్చారు. 50 లక్షలు ఖైరతాబాద్లో ఒకటి, జుబ్లీల్స్ అంటే జుబ్లీల్స్ డివిజన్ కార్పొరేషన్ డివిజన్లో అధ్యక్ష అక్కడ కూడా ఇచ్చారు. అది కూడా GHMC ఒక ఖైరతాబాద్ది మాత్రం HMD హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఇంకో మరి ప్రధానంగా అధ్యక్ష మా నియోజకవర్గంలో సోమాజ్గూడలో ఉన్నటువంటి గ్రేవ్యార్డ్ విషయంలో అది గజిట్లో కూడా ఉంది. మరి అన్నీ మనము వైకుంఠ ధామాలు ఎన్నో కడతా ఉన్నాం, కానీ ముస్లిం మైనారిటీ గ్రేవ్యార్డ్ గురించి పట్టించుకోవట్లేదని చాలా బయట జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది. త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టే విధంగా దయచేసి మంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోవాలని. చివరిగా అధ్యక్ష, జూబ్లీస్లో కూడా మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్కి BJR నగర్లో అదేవిధంగా ప్రతాప్ నగర్లో 2 చోట్లలో ఉంది. మంత్రి గారు దయచేసి KTR గారు దీని మీద స్పందించి ఎంబడే HMD అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టయితే ఆ ల్యాండ్ GHMCకి హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోతే ఆ పనులు ప్రారంభమవుతాయని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म ख़ान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आसरा वज़ाइफ के तहत दिए जाने वाले वजीफ़े ज़ईफ़ुल उम्र अफराद माज़ूरीन की दरख्वास्तों की वसूली की वेबसाइट दोबारा खोलने के इक़दाम करें और शादी मुबारक की दरख्वास्तों की यकसोई की जाए। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, 2019 में गवर्नमेंट की वेबसाइट खुली गई थी वजीफ़ों के लिए, जिसमें ओल्ड एज था,
विडो पेंशन था और हैंडीकैप पेंशन था। और उसके बाद सर आज तकरीबन 2 साल से ये वेबसाइट बंद है और काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के वजीफ़ों के लिए वेबसाइट बंद है, आप उसको अगर खुलाएंगे तो काफ़ी सहूलत और काफ़ी ज़रूरतमंद लोग क्या बोलते सो इंतज़ार में, हाँ, ज़रूरतमंद लोग इंतज़ार में हैं और अपने नए दरख्वास्त देंगे तो लोगों को अच्छा होगा। और सर ख़ास तौर से शादी मुबारक है, शादी मुबारक के लिए भी लोग अप्लाई करें, शादियां हो जा रही और उसके बाद 1-1 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा, उनके चेका नहीं आ रहे हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, ये चेका भी क्लियर कराने लगाइए और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वजीफ़ों के लिए वो भी इमीडिएटली खुलाना चाहिए। अगर आप खुलेंगे तो वहाँ पर हमारे काफ़ी गरीब लोगों को, मुस्तहिक़ लोगों को फ़ायदा होगा। शुक्रिया साहब। मिनिस्टर गारू గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎంఎం శాసనసభ్యులు ప్రస్తావించినటువంటి ఆ వెబ్సైట్ ఓపెనింగ్ విషయం కావచ్చు, అట్లాగే షాదీ ముబారక్ విషయంలో, చెక్ల విషయంలో కావచ్చు ప్రస్తావించిన అంశాలని నోట్ చేసుకున్నాను. बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने उनके हल्के समरी दुबाक में डिग्री कॉलेज कायम करने के अलावा दुबाक में कोर्ट के क़याम की मंजूरी को अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया। అధ్యక్ష, మా దుబ్బాక నియోజకవర్గం పూర్తిగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. నేను శాసనసభ్యునిగా గెలిచినట్టు నుంచి మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రం, చేగుంట మండల కేంద్రంలో 2 డిగ్రీ కళాశాలల మంజూరు కోసం అని చెప్పి పదే విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానికి కావాల్సినటువంటి భవనాలు, స్థలం ఇవ్వడానికి కొంతమంది దాతలు ముందుకు వచ్చినారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దయించి 2 డిగ్రీ కళాశాలలు, ఒకటి మిరుదొడ్డికి मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों की नस्ल के सुलगते हुए मसाइल को पेश करते हुए बताया कि शहर हैदराबाद और छोटे छोटे टाउन में ड्रग्स फैलता जा रहा है। गांजा, मुख्तलिफ गोलियां, खांसी की दवा, वाइटनर स्कूल्स के करीब के पान के डब्बों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं और शहर में नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए ड्रग्स का जाल फैलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं इससे पहले भी इस मसले को उठाया हूं और आज फिर से उठा रहा हूं, और ये मसला है हमारी नौजवान नस्ल को बचाने का, हमारे यंगस्टर्स को बचाने का, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो मैं ये बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे शहर में और दूसरे छोटे छोटे जो टाउन्स है हमारी रियासत में, वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। जैसा कि गांजा है उसमें, और कुछ ड्रग्स के टैबलेट्स हैं, और कई स्कूल की जगह पर इसको तकसीम किया जा रहा है। कॉफ सिरप है, वाइटनर है। और जब मैंने इससे पहले इस मसले को उठाया था तो पुलिस ने कार्रवाई की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्रवाई करने के बावजूद भी एक जाल बिछाकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक मंसूबाबंद अंदाज में ये काम किया जा रहा है। बिलखुसूस स्कूल्स के पास जितने भी पान डब्बे हैं, उन पान डब्बर्स को मॉनिटर करना चाहिए और उनको वहाँ से हटाना चाहिए। और कई स्कूल्स हैं जहाँ पे जिनके करीब लिकर के शॉप्स हैं, वो लिकर के शॉप्स को भी हमको वहाँ से हटाना चाहिए, और आने वाले कल में कोई भी लिकर शॉप को वहाँ पर आने से रोकना चाहिए। मैं फिर से आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ सर कि गांजा बहुत फैल चुका है। छोटे छोटे टैबलेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल कई पब्स में भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहाँ पर भी कई लोग हैं जो नशे की आदी बनाना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करके हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को ख़राब किया जाए। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत इस पे तवज्जो लें और ये ड्रग जो फैल रहा है
اس کو روکیں اور میڈیکل شاپس کو بھی مانیٹر کریں. یہ بھی کمپلسری ہے کیونکہ وہاں میڈیکل شاپ سے کاف سرپ اور مورفن یا دوسرے دوائیں جو فری چلے جاتے ہیں اس پہ واچ نہیں رہتا ہے, اس کو بھی ڈرگ انسپیکٹرز کے ذریعے مانیٹر کروائیں اور اس کو روکنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں کریں. صاحب గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య చాలా సున్నితమైంది, డెఫినెట్గా చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగింది, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా పోయినసారి శాసనసభలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం हाईएस्ट लेवल में डीजीपी साहब के साथ और सारे अजलाओं के पुलिस अफसरों के साथ सीएम सर ने खुद मीटिंग लिया. एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी स्पेशल बनाया, उसको सीवी आनंद साहब को उसका इंचार्ज भी दिया. काफ़ी काम हुआ है, जैसे आपने कहा काफ़ी काम हुआ है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे. आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए जो भी करना चाहिए हमारे तरफ से, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के पास अगर पान डब्बा में कुछ गिनौनी हरकत जो अभी अब बताएं, गांजा हो या बाकी जो भी हो, अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या वेपिंग हो, जो भी हो रहा है उसको उस पर पाबंदी करना, उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है. पूरी तरह से 100% with full force we will act, sir. But the issue is not only confined to our state, sir. It is a pan India, it is a all over India on this saridi. Anni cities lo undi. It's a truly a sad reflection. As affluence grows, unfortunately, this is one of the byproducts also, sir. But we will act very sternly, very toughly, and the government is committed to ensuring that the society becomes a drug-free society, sir. We are fully committed, and I fully agree with my friend. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के ऐवान असम्बली में कार्रवाई के दौरान मुल्क में बढ़ती फ़िरक़ा परस्ती पर तशवीश का इजहार किया है. क़ायद मुक़न्ना ने कहा कि मुल्क में सिर्फ नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं. उन्होंने ट्रेन में दहशतगर्दी की कार्रवाई का भी हवाला दिया, जबकि हिजाब के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाने पर भी तनक़ीद की. अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क पर जितना हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों का हक़ है, उतना ही मुसलमानों को भी हक़ हासिल है. हरियाणा और मणिपुर नफ़रत की आग में जल रहा है. क़ायद मुक़न्ना ने तेलंगाना हुकूमत के मुख्तलिफ़ इक़दामात की सताइश की. क़ायद मुक़न्ना ने कहा कि आज तेलंगाना में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पैरोकार और मज़ाहिब को ना मानने वाले भी ख़ुद को महफूज समझते हैं. क़ायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस रियासत पर हमें फ़ख्र है. रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मोहब्बत का पैगाम फैला रहा है. महफूज है, सुकून में है, उसकी अमलाक महफूज हैं, उसकी इज्जत महफूज है, उसका घर महफूज है, उसकी माँ और बहन की इस्मत व आबरू महफूज है. और मैं ये कहूँगा कि सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी अगर रियासत तेलंगाना की और के चंद्रशेखर राव साहब की अगर कोई कामयाबी है तो वो ये कामयाबी है कि आज रियासत तेलंगाना में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, या फिर वो भी जो गॉड को, अल्लाह को या भगवान को नहीं मानता हो, तो वो भी अपने आप को इस रियासत में महफूज तस्वुर करता है और अपने इज्जत को महफूज समझता है, अपने घर को महफूज समझता है, अपनी माँ बहन की इस्मत व आबरू को महफूज समझता है. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ बाज लोग लेकर जा रहे हैं. एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क व रियासत की तरक्की की फिक्र करे. एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो ये कोशिश करे कि बेरोजगारी को दूर करें, बेघर को घर दें, बीमार को इलाज का इंतजाम करवाएं, परेशान हाल की परेशानी को दूर करें. लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं और अपनी नजर को जब दौड़ाते हैं हमारे मुल्क की तरफ, तो आज मुल्क के हर हिस्से में आज अगर कोई चीज अगर आगे बढ़ाई जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है कि बस हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के बीच में दीवारों को उठाया जाए और नफरत की बीज को बोया जा रहा है. और आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है मुल्क में, आज क्या हाल है. चलती हुई ट्रेन में गोलियां मार दी जा रही हैं. खुसूर क्या है? तो खुसूर यही है कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है या वो मुसलमान है तो उसको घसीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं.
तो आज मुल्क में क्या हो रहा है, राजस्थान में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है। कहीं अजान के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है, तो कहीं बीफ के नाम पर नफरत है, तो कहीं पर आज ये हो चुका है कि घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, या फिर उनको किसी न किसी बात पर, अरे ये मुल्क हर किसी का ही उतना ही है, इस मुल्क पे मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू भाई का है। इस मुल्क पर मुसलमान के साथ साथ, हिंदू के साथ साथ सिख का भी वही हक है, ईसाई का भी वही हक है, हर किसी का वही हक है। लेकिन आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क की तरक्की की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तबाह मईशत की फिक्र नहीं करते, मुल्क की जीडीपी या जीएसडीपी की फिक्र नहीं करते, मुल्क के रुपये के गिरते हुए खदर की कीमत नहीं करते। मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में। तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में, तो मुझे फख्र होता है कि आज मैं इस रियासत में अपने आप को महफूज समझता हूं। मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। यह सबसे अहम बात है। और मुझे यह बात यहां पे खड़े होकर यह कहते हुए फख्र महसूस होता है कि 9 साला अचीवमेंट में सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है तो वो ये है कि रियासत में 9 बरस में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ, रियासत में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, रियासत में कोई घर नहीं जले, रियासत में कोई इस्मत या इज्जत नहीं लुटी। आज इसी की मिसाल अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अकबर साहब खड़े रहकर तारीफ कर रहे हैं केसीआर साहब की या टीआरएस की हुकूमत की। नहीं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह हक है और यह बात सही है, इसलिए कह रहा हूं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मुल्क भर में मुंतखब रेलवे स्टेशन को तरक्की दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत मलकपेट रेलवे स्टेशन का इंतखाब भी अमल में आया है। रेल मुसाफिरीन की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने की गर्ज से इस स्टेशन को मुंतखब किया गया है। इस स्टेशन से रोज़ाना तकरीबन 4000 मुसाफिरीन की आमद रफ्त की गुंजाइश है, जबकि 61 ट्रेन खिदमात इसको हासिल हैं। 36.44 करोड़ की लागत से मलकपेट रेलवे स्टेशन को ABSS स्कीम के तहत तरक्की दी जाएगी। स्टेशन के बाबुल दाखिले के बशमूल वेटिंग रूम्स और मालूमाती इशारों को अपग्रेड किया जाएगा। ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఆర్థిక పరంగా సైనిక పరంగా ఒక పుష్టికరమైనటువంటి దేశంలో ప్రపంచంలోనే ఈ దేశాన్ని తీసుకుపోయేటువంటి దిశలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే 2014 నుండి ఈ దేశంలో మౌలిక వసతుల్ని కల్పించినప్పుడే ఆ యొక్క సౌకర్యాలన్నీ కూడా ప్రజలందరికీ, సామాన్య ప్రజలకి వస్తుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో రైల్వేసు, రోడ్వేసు, విమానయానం, సముద్రయానం ఇవన్నిటిలో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ చేస్తూ ఈరోజు మిగతా దేశాలన్నిటితో కాంపిటిటివ్ దీంట్లో మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు మన యొక్క దేశాన్ని. అందులో భాగంగా ఈ యొక్క రైల్వేస్ని 2.5 లక్షల బడ్జెట్ తోటి
ముందుకు తీసుకెళ్లటమే కాకుండా కొత్త రైల్ని ఏర్పాటు చేయటమే కాకుండా వాటి యొక్క స్పీడ్ని పెంచడమే కాకుండా ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్స్ అన్నిటిని కూడా ఆధునీకరణ చేయటంలో जिम केयर हॉस्पिटल और कामदिनी हॉस्पिटल की जानिब से मुश्तरका तौर पर संतोष नगर में वाक़ डायग्नोस्टिक सेंटर में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन और जनरल फिजिशियन ने कैंप से रुजू होने वालों का मुआयना किया। मुकामी अफराद और ख़वातीन की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफ़ादा किया। कैंप कोऑर्डिनेटर शेख इम्तियाज़ के अलावा मोहम्मद जाफ़र, शाहरुख हुसैन, मोहम्मद मुबशिरुद्दीन ने कैंप के इनेक़ाद में अपना ताउन पेश किया। डॉक्टर मिर्ज़ा शेख और डॉक्टर प्रेम ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रेम बोल रहा हूँ, ऑर्थोपेडिशियन हूँ कामिनेनी से। हम लोग नी रिप्लेसमेंट्स और फ्रैक्चर्स के सारे ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी 50 साल के ऊपर आ रहे हैं, अभी बेसिकली ज़्यादातर लोगों को घुटने में दर्द हो रहा है, वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले लोग साइकिल चलाते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहता था, अभी वैसा नहीं है, इसीलिए बहुत जल्दी दर्द शुरू हो रहा है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी भी काफ़ी लोगों में पाया जा रहा है अभी इस बीच में, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी रूल आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है अभी। बाकी फिजिकल एक्टिविटी डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो गया है। दक्कन एनआरआईज़ ग्रुप की जानिब से महाना इजलास का इनेकाद मलकपेट में वाक़ ग्रुप के ज़ेली दफ्तर में अमल में आया, जिसकी सदारत चेयरमैन ग्रुप इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने की। अब्दुर्रहमान बेग हाल मुक़ीम जिद्दा और ओवरसीज़ करस्पॉन्डेंट बरूबी न्यूज़ जिद्दा ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और ख़िताब किया। इब्तिदा में कारगुजार सदर अनवर खान ने मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि शकील अहमद शाहिद ने महाना रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन ग्रुप इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद की निगरानी में अब्दुर्रहमान बेग को तहनीत पेश की गई और यादगार मोमेंटो भी दिया गया। शकील अहमद शाहिद फाइनेंस सेक्रेटरी की हज से वापसी पर तहनीत पेश करते हुए दुआ की दरख्वास्त की गई। इस इजलास में अराकीन गौस मुहीउद्दीन, अब्दुल रज़्ज़ाक, मौज़म नवाब, सैयद इम्तियाज़ अली, ख्वाजा मोइज़ आलम, असदुल्ला खान, मुजीबुल्लाह, अहमद इमरान, अब्दुल अजीज़ व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के इनकलाबी शायर और साबिक नक्सलाइट जी विट्ठल राव अलमारूफ गदर इतवार को अपोलो हॉस्पिटल में दौरान इलाज 77 साल की उम्र में फौत हो गए। दिल का आर्जा बढ़ने की वजह से 20 जुलाई को अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें रुजू किया गया था, जहां वो ज़ेरे इलाज थे। 3 अगस्त को गदर की बाईपास सर्जरी भी की गई थी। अपोलो हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक मुतादिद आज़ा की खराबी से वो मुतासिर थे और दौरान इलाज वो फौत हो गए। नक्सल मुहिम के अख्तिताम के बाद वो साल 2010 से अलहदा तेलंगाना की तहरीक से जुड़ गए थे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने तारीख़ी चार मीनार के लिए नज़्म करदा मुस्तकिल रोशनियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि NCI के इश्तराक से चार मीनार के चारों मीनारों पर मुस्तकिल तौर पर बरक़ी खुमखुमे लगाए गए हैं, जिसकी रोशनी एक फासले से भी देखी जा सकती है। किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा माह क़िले गोलकुंडे पर भी इसी तरह मुस्तकिल बरक़ी खुमखुमे लगाए जाएंगे, जिसके लिए इंडियन ऑयल फाउंडेशन ताउन कर रहा है। चार मीनार है, चार मीनार के ऊपर आज से परमानेंट लाइटिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ है, क्योंकि पहले तो
26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ऐसे शुभ दिन पर ऐसे लाइटिंग होता था। मगर हम भारत सरकार से तय किया है चारमीनार पे परमानेंट लाइटिंग करवाने के निर्णय किया है। ये शुरुआत है और ठीक, और इसको और अच्छा भी करेंगे। वैसे ही गोलकोंडा भी परमानेंट लाइटिंग करने वाले हैं। गोलकोंडा में लाइट एंड साउंड शो जो नया करने वाला है भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, इस दोनों जगह पे भारत सरकार की तरफ से हम इस परमानेंट लाइटिंग सिस्टम, कलर लाइटिंग सिस्टम करने वाला है 365 डेज। ये 72 साला सैयद मशकूर आलम साकिन सत्या कॉलोनी गेट नंबर 2 शेख पेट 29 जुलाई से लापता बताए गए हैं। उनके फर्जंद सैयद ताबिश आलम ने इस सिलसिले में फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आए तो ख्वाहिश की गई है कि वो फिल्म नगर पुलिस स्टेशन को इत्तला दें या फिर मोबाइल नंबरात 9396 397-802 या फिर 8074917352 पर भी मुतल्ला किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली में आरटीसी मुलाजिमीन इंजमाम बिल मंजूर। 43,000 आरटीसी मुलाजिमीन अब सरकारी मुलाजिम। आरटीसी एम्प्लॉइज के लिए तारीख साज लम्हा, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट का बयान। अगले असम्बली इंतखाबात में भी BRS अक्सरियत हासिल करेगी। हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम हमें मुंतखब करेगी। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में मुबाहिस पर दिया बयान। मुल्क में बिगड़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती पर तशवीश का इजहार। पिछले 9 साल में तेलंगाना में कोई फ़िरक़ा वराना फसादात ना होने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश। ऐवान असम्बली में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना के इनकलाबी शायर और साबिक़ नक्सलाइट गदर दौरान इलाज चल बसे। अवामी मफादात को नज़्बुल ऐन बनाने वाले क़ायद को मुख्तलिफ तबक़ात का खिराज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।